So hi everyone, this is Vivansh. So I am your trainer for your professional makeup artist course. This is your day one and today we are going to start our professional makeup artist class. And today we are just going to talk about makeup, what is basically makeup and what are the basis of makeup, introduction to makeup. Many of the people will be new here. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेकअप के बारे में नहीं पता होगा लेकिन मेकअप करने की क्यूरियोसिटी बहुत होगी. They will be very much passionate about makeup लेकिन मेकअप करना कैसे है, प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने हैं, कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, किस स्किन पे क्या यूज करना है, ये सब नहीं पता. सो इन दिस क्लास एंड इन डे वन हम लोग ये सभी नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू फन वी आर गोइंग टू हैव फन एंड ब्लास्ट इट आउट हमारा सारा नॉलेज. ओके, सो before talking about makeup, let's talk about ourselves. When we are concerned with makeup, we should be concerning with ourselves also. अब हम हमारे अपने आप से कैसे concern होंगे? When we talk about makeup, when we talk about professionalism, makeup only doesn't count. Our styling, our looks, our grooming, everything counts. सब चीजें count होती हैं जब हम एक professionalism में आते हैं. जब भी whenever we step into professionalism, जब भी हम लोग professionalism के अंदर step in करते हैं, तब हमारी कुछ चीजें personal कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा point में आती हैं. Okay, so number one is my appearance. Number second is my language, my speaking, and number third is my overall look. Okay, so let's talk about speaking. When we are talking to someone, speak with very softness, so it should look like humble. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं कितने आई थिंक आई एम टॉकिंग वेरी स्वीटली टू यू ऑल, बहुत प्यार से. सो मेक श्योर जब भी आप लोग किसी से भी बात कर रहे हो, इवन विद योर क्लाइंट्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, एवरीवन, जस्ट टॉक विद अ वेरी स्मूथनेस. बहुत अच्छे से और एक स्मूथनेस से काम करेंगे. नंबर सेकंड इज माय लुक्स. माय लुक्स ऑलवेज मैटर्स. We people say looks doesn't matters, nothing matters, but deep in we all know everything matters, right? You all say looks does matters or not? Yes, it does matters. We just say it doesn't matters, but basically everything matters to everyone, right? So make sure you are looking perfect inside out. And number third is, अब अपने आप को इतना भी ग्रूम मत कर दो और किसी को इतना भी फॉलो मत करने लग जाओ कि आप लोग बिल्कुल उसी को फॉलो कर दो और अपने आप को पीछे कर दो, राइट? व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग की जगह व्हेन यू स्टार्ट कॉपिंग समवन, तो आप लोग खुद की पर्सनालिटी को भी भूल जाते हो, राइट? जब हम लोग किसी को कॉपी करना शुरू करते हैं तो जो हमारी खुद की पर्सनालिटी होती है हम उसको भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और सामने वाले की पर्सनालिटी को कैरी करने में थोड़ा सा एक कॉन्शियसनेस आती है हमारे दिमाग में. So make sure you are not copying anyone, you are just following that person. एक इंसान को I like him तो I am following him, right? I like his accent so I am copying his accent, right? So make sure आप सिर्फ उसको follow कर रहे हो, you are not copying anyone. Okay, so let's get back to the makeup. Apart from everything, ये जो जब चीजें हैं नॉर्मल सी चीजें हम लोग ये डे टू डे बेसिस पे थोड़ी करके हम लोग will learn everything and groom ourselves. Okay, now moving and stepping in the industry, in makeup industry. When we are stepping in makeup industry, जब हम लोग makeup industry में step in करते हैं, we will be aware of the things which are coming in front of me. मुझे उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो जो makeup industry में है. Okay, I should have a knowledge of bit of fashion, I should have a bit knowledge of hair, I should have bit knowledge of makeup also, everything. And the second thing is that when I am concerning towards makeup, I should be very concerned about my skin and my client's skin, right? If my, for example, if my canvas is not clean, if my cardboard is not clean, then how possible my painting should be perfect, right? For the perfect finish, for the perfect beautiful flawless base, we always need a clean canvas, right? To keep that canvas clean, we always use many tips and tricks, doing things to clean it up, right? Same thing is with our skin. Same चीज हमारी skin के साथ है, following a perfect skincare routine. When you are concerned with makeup, you should be concerned with your perfect skincare routine, right? Skincare is basically the care which you took for your skin, right? हम लोग हमारी body का care करते हैं. We give food to our body, right? We give junk food to our body, whatever we like. मुझे coke पसंद है, I give coke to myself. I like eating pizza, so I give pizza also. But उसके साथ साथ we should be concerned with our skin also, because हमारा skin is the largest body part.
treat your skin like a baby. You should be treating your skin like a baby. जैसे आप लोग अपने बच्चों को treat करते हो, treat your skin as your baby. Don't be too much harsh to your skin. Always treat it as your own baby, right? So how we can treat it as our own baby? We'll be doing हमारा skincare routine regularly, right? Skincare routine up consist of see, I'm very punctual about skincare routine, but I don't follow that लंबे skincare routines. Because वो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4th day पे you will be like इतना सब करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना. Just leave it and sleep. Direct face wash and sleep. Right? So always follow छोटे छोटे skincare routines जो आपको regular जब आप करो तो आपको ज्यादा दिक्कत ना लगे. Right? Understanding what I'm trying to say? CTM should be a small and effective. CTM should be small and effective. कम quantity में use करो, कम products use करो, but effective use करो. Okay, हमारा skincare is consist of basically 3 parts, which is my CTM. CTM stands for cleansing, toning, and then moisturizing. Right? सब लोगों को समझ में आएगा what is basically CTM? CTM is basically a base of makeup. To look makeup flawless, makeup को flawless दिखाने के लिए, skin glow दिखाने के लिए, you should always follow a perfect skincare routine which is recommended according to your skin type. Right? CTM, which stands for my cleansing, then my toning, and then my moisturizing. Okay, let's move towards the makeup. It's my skincare routine. Let's move towards the makeup. What is basically makeup? What do you guys say? What is basically makeup? Don't waste your time. Just type it in the comment section and I'll have a look. Okay, let me tell you what is basically makeup. Makeup is basically a natural amplification of your own features. It's not a drastic transformation. Right? What I'm saying is, makeup is a natural amplification of your own features. It's not a drastic transformation. Right? Makeup जो है हमारे जो खुद के features हैं, उनको enhance करता है, ना कि मेरे features को change कर देता है. I am Vansh before makeup, and after makeup I am supposed to look like Vansh. If I am before in makeup I am Vansh, तो after makeup भी मैं Vansh ही लगना चाहिए. ऐसा नहीं है before makeup I am looking like Vansh and after makeup I am looking like Aishwarya Rai. Right? So it is supposed to be looking natural and looking the same before and after. Okay. Okay, so we had talked about each and everything. हमने आसपास skincare and all stuff, grooming, ये सब चीजों के बारे में बात कर लिया. Let's talk about the main thing जो है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे सब लोग आए हैं, which is my makeup. Right? Let's think of the steps of makeup. Let's recall the steps of makeup. So my step 1 will always be my skincare routine. Before makeup, after makeup, कभी भी skincare will be the most number 1 priority. मतलब skincare before makeup है तो भी skincare होगा, after makeup है तो भी skincare होगा. Right? If I'm applying makeup, makeup लगाने से पहले मैं CTM करूँगा. If I'm removing makeup, उसके बाद में मैं cleansing, toning and moisturizing करूँगा. Right? Cleansing, toning, moisturizing. Now cleansing, toning, moisturizing. There are many products in the market जो अलग-अलग skin के according होते हैं. We have lots of skin. So let's talk about the skin. What are the basic skin? कौन-कौन सी होती हैं? Number 1 is my dry skin. Second is my oily skin. Third is my sensitive skin. Fourth is my combination skin. Mostly यही skin होती है जो I see in the market, see in the clients. जो basic client की यही 4 skin types होती हैं. My dry skin, oily skin, combination skin and my sensitive skin. Okay. Sorry. So let's check out ये skin होती क्या है. Number 1, dry skin. What is basically dry skin? What do you guys feel? आप लोगों को क्या लगता है dry skin क्या होती है? Comment section में डाल दो. I'll have a look. Okay. What is dry skin? Dry skin क्या होती है basically? Dry skin is basically जिस skin में hydration की level बहुत ही ज़्यादा कम है. राइट? जिस स्किन में ऑयल की अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है, जिस स्किन में एक्सेस ड्राइनेस है बट सीबम बहुत कम है. राइट? आप लोगों ने देखा होगा हमारे फेस पे सब कुछ लोगों के फेस पे कुछ एक ऑयल आ जाता है फेस पे.
राइट, उस ऑयल को हम लोग बोलते हैं सीबम। उस ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट ऑयल सीबम, SEBUM। दिस इज द नेचुरल ऑयल जो हमारी स्किन जो है वो सिक्रीट करती है आफ्टर सम टाइम। दिस इज द नेचुरल ऑयल जो हमारी स्किन के अंदर होता है और हमारी स्किन जो है कुछ टाइम के बाद सिक्रीट करती है, राइट। बट जो हमारी ड्राई स्किन होती है उसके अंदर जो ये सीबम की अमाउंट है ये बहुत कम होती है। ड्राई स्किन के अंदर सीबम की अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए वो एक्सेस ड्राई होती है, राइट। नंबर माय सेकंड स्किन इज माय ऑयली स्किन। व्हाट इज बेसिकली ऑयली स्किन? जिसके अंदर जो सीबम है, नेचुरल ऑयल है, उसकी अमाउंट एक्सेस में होती है, उसको हम बोलते हैं ऑयली स्किन। ओके, नेक्स्ट इज माय कॉम्बिनेशन स्किन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन स्किन? कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जो समटाइम्स ऑयली भी होती है एंड समटाइम्स ड्राई भी होती है। अब समटाइम्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन इज, कॉम्बिनेशन स्किन का जो हमारा टी जोन होता है, फोरहेड, नोज एंड चिन एरिया, ये ऑयली होता है, और जो हमारा सी जोन होता है, माय चीक एरिया, ये होता है ड्राई, राइट। इट्स नोन एज कॉम्बिनेशन स्किन। और समटाइम्स क्या होता है, जो मेरा टी जोन है वो होता है मेरा ड्राई, और जो मेरा सी जोन है वो होता है मेरा ऑयली। सो इस स्किन को हम लोग बोलते हैं हमारा कॉम्बिनेशन स्किन। Okay, let's talk about the last skin which we see in the market is my sensitive skin. What is basically sensitive skin? Sensitive skin क्या होती है? Sensitive skin वो skin होती है जो हमारा किसी भी chemical reaction की वजह से, किसी भी हमारा climate change की वजह से, किसी भी product की वजह से, या किसी भी natural harm की वजह से वो जो है skin बहुत जल्दी react करना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। फॉर एग्जाम्पल, धूप में गए तो रेड हो गई एकदम से, कुछ गलत प्रोडक्ट लगा दिया, वो एकदम से एक्ने ब्रेकआउट होने शुरू हो गए। सो उस स्किन को हम लोग, जिस स्किन के ऊपर इंस्टेंट रिएक्शन आता है किसी भी चेंज का, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। समझ में आया सबको? अंडरस्टूड टू एवरीवन? आई होप ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा है, एंड आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन नेक्स्ट क्लास we'll have a look at that question. So should we continue? Okay, so let's talk about the skincare routine according to our skin type. Skin type के according हम लोग हमारा skin care देखते हैं क्या होता है। Okay, so let's talk about dry skin firstly. Okay, dry skin is basically the skin जिसके अंदर hydration की amount बहुत कम है, sebum की amount बहुत कम है, right? तो हम लोग dry skin के लिए हम लोग always we will be using the cream based cleansers. राइट, ड्राई स्किन के लिए हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि हम लोग क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, राइट। ड्राई स्किन के लिए हम लोग क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स क्यों यूज करते हैं? ड्राई स्किन जो है वो नेचुरली बहुत ज्यादा वाली ड्राई है, और उसके अंदर हाइड्रेशन की अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है। और जो हमारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ऑयल थोड़ा सा फिल किया होता है, ताकि जब हम लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करें तो एक थोड़ा सा हाइड्रेशन मिले, राइट। तो हमारी जो ड्राई स्किन है उसके पास हाइड्रेशन नहीं है, उसको हाइड्रेशन अब हम कैसे देंगे? ऑयल तो लगा नहीं सकते फेस पे, उसको हाइड्रेशन हम लोग कैसे देंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्लेंजर है उसको हम लोग क्रीम फॉर्म में ले लेंगे, ताकि जब मेरा ड्राई एरिया के ऊपर वो क्रीम वाला क्लेंजर जाए उसको थोड़ा सा हाइड्रेशन दे। अंडरस्टूड? हम लोग ड्राई स्किन के लिए कैसे क्लेंजर यूज करेंगे? क्रीम बेस्ड क्लेंजर। ओके, फॉर टोनर वी विल स्विच टू वन टोनर व्हिच इज माय रोज वाटर। आज तक जितने टोनर्स मैंने यूज करे हैं, मुझे सभी टोनर्स में से रोज वाटर जो है वो सबसे बेस्ट टोनर लगा है फॉर ऑल स्किन टाइप। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्चराइजर। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट ड्राई स्किन, जब हम लोग ड्राई स्किन की बात करेंगे, अगेन हम लोग मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करेंगे? क्रीम बेस्ड वाला, क्योंकि क्रीम बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर के अंदर अगेन क्या होगी, थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी, ताकि जो मेरी अनहाइड्रेटेड स्किन है, मेरा अनहाइड्रेटेड क्लाइंट है, ड्राई क्लाइंट है, उसको जो है ऑयल मिल जाए, हाइड्रेशन मिल जाए, और उसकी जो स्किन है वो रिपेयर हो जाए। अंडरस्टूड? सबको ड्राई स्किन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ड्राई स्किन का कॉन्सेप्ट एंड ड्राई स्किन का स्किन केयर रूटीन। ओके, लेट्स स्विच टू अवर ऑयली स्किन। ओके, ऑयली स्किन जो है उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, ऑयल की अमाउंट है। ऑयली स्किन के पास ऑयल की अमाउंट ऑलरेडी है, तो उस ऑयल को अब हमें करना है कंट्रोल।
तो उस ऑयल को कैसे कंट्रोल करोगे? उसको दोबारा से ऑयली प्रोडक्ट्स देके या उसे थोड़े से ऑयली प्रोडक्ट्स लेके? ओके, जब भी हम लोग ऑयली स्किन की बात करेंगे, हम लोग ऑयली स्किन को कोई भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं देंगे। जिस भी प्रोडक्ट में थोड़ा भी ऑयल होगा, हम लोग ऑयली स्किन को वो प्रोडक्ट नहीं देंगे। हम लोग ऑयली स्किन के लिए हमेशा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। या तो हम लोग वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करेंगे या फिर हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे? जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स। ताकि बिकॉज जो हमारी ये जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके अंदर जो है ऑयल की अमाउंट होती ही नहीं है, राइट? तो जो भी हमारी ऑयली स्किन होगी, हम लोग ऑयली स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे? जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ताकि उनकी स्किन को और ज्यादा ऑयल ना दे दे। बिकॉज उनकी स्किन पे ऑलरेडी ऑयल है, ज्यादा ऑयल नेचुरल ज्यादा ऑयल होने की वजह से उनकी स्किन पे क्या आते हैं? पिंपल्स, एक्ने, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब बहुत सारे होते हैं। ओके, उसके बाद अगेन हम लोग उनको ऑयली प्रोडक्ट दे देंगे तो और ज्यादा क्या होने शुरू हो जाएंगे? एक्ने। सो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए, पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या प्रोडक्ट्स देंगे उनको? जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स, और ऑयली प्रोडक्ट्स कम से कम देंगे। अंडरस्टूड? जब भी हम लोग ऑयली स्किन की बात करेंगे तो ऑयली स्किन को हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स देंगे? विच आर इन फॉर्म ऑफ जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड। जब हम ड्राई स्किन की बात करेंगे तो ड्राई स्किन को कौन से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे? क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। राइट, लेट्स टॉक अबाउट नाउ कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन एक साथ में। जो हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होगी, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए स्पेसिफिक मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है रेकमेंडेड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, एंड फॉर सेंसिटिव स्किन भी मार्केट में अलग से प्रोडक्ट आते हैं रेकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन। बिकॉज कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन आप लोगों को नहीं पता कि कब रिएक्ट कर जाए और कैसे रिएक्ट कर जाए, राइट? सो हमेशा प्रोडक्ट्स देख के लो जिनके ऊपर लिखा हो रेकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन एंड जिनके ऊपर लिखा हो रेकमेंडेड फॉर योर दैट कॉम्बिनेशन स्किन। अदरवाइज इतने कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं रेकमेंडेड फॉर ऑल स्किन टाइप, वो प्रोडक्ट जो है वो सभी स्किन टाइप को सूट करते हैं। जस्ट गो फॉर दैट प्रोडक्ट्स, राइट? सब लोग को स्किन केयर रूटीन समझ में आया? व्हाट इज बेसिकली स्किन केयर, व्हाट इज बेसिकली CTM? अगर किसी को नहीं समझ में आया, again put it in your comment section and I will have a look at the questions, and अगली बार में अगले टॉपिक में we will clear all the questions. Okay, so let's talk about cleansers now. What are basic cleansers जो मैंने आप लोगों को बताए? Okay, so I am going to show you the cleansers कि वो cleansers कैसे होते हैं. For the dry skin people, हम लोग हमेशा ऐसे will always use these cleanser which are in the form of cream. Okay, have a look at this cleanser. Isn't it looking in the cream form? Right? For all of the dry skin people, मैं हमेशा अपना cleanser use करूंगा which is in the form of cream. Have a look at this cleanser. Okay, have a look at this cleanser. For dry skin people, मैं हमेशा अपना cream based cleanser use करने वाला हूँ. Okay, let's next talk about the dry oily skin people. For all of the people who are oily, उनके लिए मैं हमेशा कौन सा cleanser use करूंगा? मेरा gel based cleanser. Have a look at the cleanser. For people with oily skin will always use this gel based cleanser, and people with the dry skin will always use the cream based cleanser, ताकि जो मेरे ड्राई स्किन वाले हैं उनको हाइड्रेशन मिल जाए जो उनके पास नहीं है, और जो ऑयली स्किन वाले हैं जिनके पास एक्सेस हाइड्रेशन है उनकी जो हाइड्रेशन है एक अमाउंट में लॉक हो जाए। मतलब जो उनका एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है उसकी एक्सेसनेस क्या हो जाए? कम हो जाए। सबको समझ में आया? लुक एट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्लेंजर्स, राइट? Okay, let's now step to the toner. Okay, let's now step to the toner. For toner, I always recommend you using this. This is the rose water. I always, my personal skincare में I also use this rose water and its fragrance. Next thing, इसका fragrance बहुत अच्छा है. उसके बाद इसका hydration level बहुत अच्छा है कि आपकी स्किन को ना ही ज्यादा एक्सेस ड्राई कर देगा, because many toners are there in market जो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं. So this is the cleanser जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, एक प्रॉपर अमाउंट में आपको हाइड्रेशन देगा. Okay.
सबको क्लेंजर्स के बारे में समझ तो आया, बट लेकिन क्लेंजर क्या काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. इनके काम के बारे में बात करते हैं. ओके, वन थिंग लेफ्ट व्हिच इज माय मॉइस्चराइजर. फॉर मॉइस्चराइजर आई ऑलवेज यूज दिस मॉइस्चराइजर, दिस वन which is recommended for all skin type. ये जो मेरा मॉइस्चराइजर है, ये मॉइस्चराइजर मेरा ऑल स्किन टाइप को recommended है, this one. It just looks कि ये थोड़ा सा क्रीम में है, बट लेकिन इट्स नॉट इन क्रीम फॉर्म. ये बेसिकली एक उस फॉर्म में है कि इट जस्ट लुक्स लाइक क्रीम, लेकिन ये मॉइस्चराइज अच्छे से कर देता है और स्किन में ब्लेंडेबल बहुत इजीली होता है और ज्यादा ऑयली भी नहीं है ये मॉइस्चराइजर. It gives हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन जितना मेरी स्किन को नीडेड है. ना ही ज्यादा एक्सेस हाइड्रेशन, ना ही ज्यादा ऑयलीनेस ऑन माय स्किन, ना ही ज्यादा ग्रीसीनेस ऑन माय स्किन. गिव्स अ वेरी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन. ये वो वाला मॉइस्चराइजर, राइट? ओके, आफ्टर मॉइस्चराइजर लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ये चीजें क्या क्या काम करती हैं हमारी स्किन पे, राइट? इफ वी टॉक अबाउट क्लेंजर, क्लेंजर बेसिकली आपकी स्किन के पे क्या काम करता है, व्हाट इज, ओके, आप सब लोग क्लेंजर भी यूज करते हो, आप सब लोग फेस वॉश भी यूज करते हो, राइट? आप लोग फेस वॉश भी यूज करते हो और क्लेंजर भी यूज करते हो. आप लोगों को डिफरेंस पता है बिटवीन फेस वॉश एंड क्लेंजर? जिसको डिफरेंस पता है जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई हैव अ लुक एट इट. जिसको डिफरेंस पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दो डिफरेंस बिटवीन आपका क्लेंजर एंड योर फेस वॉश. मैं दोनों में और कमेंट बॉक्स में डाल दो एंड आई हैव अ लुक एट दैट. Okay, so what is basically face wash? Face wash is in diluted form. Face wash जो है आपका वो एक diluted form में होता है और आपकी स्किन को क्या कर देता है, ड्राई. एंड ऑन द सेम पार्ट आपका जो क्लेंजर है वो आपकी स्किन को क्या करता है, एक अमाउंट की हाइड्रेशन देता है. अगर आप लोग क्रीम बेस्ड क्लेंजर यूज कर रहे हो तो वो क्रीमीनेस पे आपको हाइड्रेशन देगा ड्राई स्किन के लिए. अगर आप लोग जेल बेस्ड पे यूज कर रहे हो तो आपको आपकी ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग पे हाइड्रेशन देगा. सो बेसिकली क्लेंजर क्या करता है, आपको एक तो हाइड्रेशन लेवल रखता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और दूसरा क्लेंजर क्या करता है, आपके पोर्स को ओपन करके डीप तक जाके क्लीन करता है. जो आपका क्लेंजर है उसका बेसिक वर्क यही है, आपके पोर्स को ओपन करना और उनको अच्छे से क्लीन करना. अब दूसरी बात ये, हम लोग क्या करते हैं, क्लेंजर किया या फेस वॉश किया, हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो गए, और पोर्स ओपन होने के बाद हम लोग ऐसे ही, बॉयज यूजुअली डू दिस, बाइक पे चले गए घूमने के लिए, राइट? ऑलवेज जब भी आप लोग क्लेंजर यूज करोगे उसके बाद आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे. अब उन ओपन पोर्स को अगर आप ऐसे ही लेके अगर मार्केट चले गए, व्हाट विल हैपन इज आपके पोर्स के अंदर एक्सेस डर्ट जाएगा, एक्सेस ऑयल जाएगा, और क्या होगा, आपके पोर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. जब पोर्स आपके क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको फिर से आएगा एक्ने इशू, पिंपल इशू, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड ऑल स्टफ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो स्किन कंसर्न होते हैं, राइट? बट अब उन पोर्स को अगर आपने ओपन कर दिया एक बार, उन पोर्स को क्लोज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो उन पोर्स को क्लोज करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मेरा टोनर. टोनर बेसिकली क्या करता है, जितने भी मेरे ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देता है, उनको क्लोज कर देता है, ताकि जब मैं बाहर जाऊं ना ही उनके अंदर एक्स्ट्रा डर्ट जाए, एक्स्ट्रा पोल्यूशन जाए, एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी ना जाए, राइट? अब बेसिकली सम टोनर्स क्या करते हैं, आपकी स्किन को ड्राई आउट कर देते हैं, बेसिकली कर ही देते हैं, बिकॉज अगर आपका स्किन ड्राई आउट हो रहा है उसी वजह से आपके जो पोर्स है वो श्रिंक हो रहे हैं, राइट? अब जब उसने हमारी स्किन को एक्सेस ड्राई आउट कर दिया तो मेरे स्किन पे फ्लेक्स निकलने शुरू हो जाते हैं. अब वो फ्लेक्स ना निकले, उनको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, अपना मॉइस्चराइजर. आई यूज माई मॉइस्चराइजर टू हाइड्रेट माई स्किन, और उसका जो एक्सेस ड्राइनेस है उसको कम करने के लिए. सबको समझ में आया? द बुक ऑफ CTM. So in today's topic we are basically covering our CTM process and सारा मेकअप का theory कि मेकअप is basically क्या होता है और हमारा CTM क्या होता है according to मेरा skin type. Okay, from tomorrow, आज we had learned about CTM and skincare and all stuff. From tomorrow, I want each one of you to sit with the proper CTM done. कल से जब भी हम लोग क्लास में मिलेंगे आप लोग प्रॉपर अपना CTM करके बैठोगे. I would love to see everyone done with the CTM. Okay, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ, just randomly put it in the comment section and I will have a look at each and every question and answer in the next video. So bye everyone, take care, bye bye.